Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now month of April has been completed, and now we will start the new chapter of the chapter name is eclipses. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। डू यू नो दैट वी आर ऑलवेज ऑन द मूव इवन व्हेन वी आर स्टैंडिंग स्टिल वी आर मूविंग। We are moving because the earth is constantly moving. Everything in our solar system is moving. Our solar system includes the sun, the 9 planets and their moons, comets and asteroids. They are constantly moving to at the center of all is the sun. At the center of it all is the sun. क्या आप जानते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि हम खामोश खड़े हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हरकत कर रहे हैं, क्योंकि जमीन मुसलसल हरकत करती है। हमारे शमसी तवानाई में सब कुछ निजाम चल रहा है। हमारे निजाम शम्स में सूरज, 9 सैयारे और इनके चांद दो मिकैत में और शामिल हैं। वो भी मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। इस सबसे मरकज में सूरज है। सूरज के फासले पर तीसरे नंबर पर आने वाली है जमीन। जमीन को गर्दिश करने में 24 घंटे लगते हैं। द अर्थ विच रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन टेक्स 24 hours to rotate. This is what cases day and night. As the earth rotates, it also moves or revolves around the sun. तीसरे नंबर पर जमीन आने वाली है, जो गर्दिश करने में 24 घंटे जिसको लगते हैं। ये दिन रात का सबब बनता है। जैसा कि जमीन घूमती है, ये भी हरकत करती है या सूरज के गिर्द घूमती है। Have you ever seen this happening? क्या आपने कभी ऐसा होता देखा है? The lunar eclipse is not harmful for the eyes and we can easily see it with the naked eye. चांद ग्रहण आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं है और हम इसे खुली आंख से भी देख सकते हैं। In a solar eclipse, the moon moves between the earth and the sun. When this happens, the path of the sun's light is blocked. The sky slowly gets dark as the moon moves in front of the sun. When the moon and the sun are in a perfect line, it is called a total eclipse. सूरज ग्रहण में चांद जमीन और सूरज के दरमियान घूमता है। जब ऐसा होता है तो सूरज की रोशनी का रास्ता मसदूद हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। चांद के सूरज के सामने आते ही आसमान आहिस्ता आहिस्ता तारीक हो जाता है और जब चांद और सूरज एक मुकम्मल लाइन में हो तो उसे कहते हैं ग्रहण, यानी उसे चांद ग्रहण कहा जाता है।
These are very rare. Most people can only see once in their lifetime. Never try to see the solar eclipse with the naked eyes because it can harm your eyes and sometimes may cause complete blindness. You should see the solar eclipse only by using special devices and under supervision of a qualified and experienced adult. चांद ये बहुत नायाब हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। सूरज ग्रहण को कभी भी यानी कि नंगी आंखों से यानी कि बगैर ग्लासेस लगाए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और बाज़ औक़ात मुकम्मल अंधापन का सबब भी बन सकता है। आपको सूरज ग्रहण सिर्फ खुसूसी आलात के इस्तेमाल से और किसी मुस्तनद और तजुर्बेकार बालिग की निगरानी में देखना चाहिए। In 1503 यानी 1503 Christopher Columbus, who discovered America, and his crew were stranded on the island of Jamaica for over a year with his ship badly damaged and the food supply low. Columbus traded with the Native Americans for food. The natives soon grew tired of feeding Columbus and his crew and refused to supply him with any more food. Columbus knew that a lunar eclipse would soon occur on February 29, 1504. On the night of February 29, Columbus told the natives that God was angry with them for not providing him with food. He told them that God was going to make the moon disappear. At that moment, the natives witnessed the beginning of lunar eclipse. They begged Columbus to ask God to forgive them and bring back the moon. After an hour passed, and as the lunar eclipse was ending, Columbus told the natives that God had forgiven them and the moon would be returned. As the natives looked into the sky, of course, they saw the moon returning. 1503 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया और इसका अमला जजीरे पर 1 साल तक, यानी कि इसके अमले के लोग जजीरे पर 1 साल तक फंसे हुए थे। इसके जहाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और खाने की फराहमी कम होने की वजह से कोलंबस ने मकामी अमरीकियों के साथ खाने के लिए तिजारत की। मकामी लोग जल्द ही कोलंबस और इसके अमले को खाना लाते हुए थक गए और उसे मजीद खाना फराहम करने से इनकार कर दिया। कोलंबस जानता था कि जल्द ही 29 फरवरी 1504 को चांद ग्रहण लगेगा। 29 फरवरी की रात कोलंबस ने मकामी लोगों से कहा कि खुदा उसे खाना फराहम ना करने पर उससे नाराज़ है। गोया उसने उन्हें बताया कि खुदा चांद को गायब करने वाला है और उस वक्त मकामी लोगों ने चांद ग्रहण के आगाज़ का मुशाहिदा किया। उन्होंने कोलंबस से इल्तिजा की कि वो खुदा से उनको माफ़ करने और चांद को वापस लाने के लिए 1 घंटा गुजरने के बाद
जब चांद ग्रहण ख़त्म हो रहा था, कोलंबस ने मकामी लोगों से कहा कि खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया है और चांद वापस आ जाएगा। जैसे ही मकामी लोग यानी लोगों ने आसमान की तरफ देखा, यकीनन उन्होंने चांद को लौटते हुए देखा। बेटा आपका ये चैप्टर यानी एक्सप्लेनेशन के साथ मुकम्मल हो गया है। इसके बाद में एक्सरसाइजेस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चन आंसर इसके मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपने वो चैप्टर कंप्लीट करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।